So let's get started, man. Today's session is about the life, the kahani of Kambhari himself. Kambhari, जिनका असली नाम है कुणाल पंडागले. Get that right. He is a Maharashtrian. तो of course सरनेम थोड़ा भारी होता है महाराष्ट्रन्स का. It's पंडागले, ठीक है? पंडागले. Get it right. Also, an original born and brought up story of Bombay itself. अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं ना यार, तो people in Maharashtra are very passionate. अगर किसी भी चीज़ के लिए बात कर लो आप, about anything and everything, they're very very passionate people, which I really appreciate. और ये हर जगह की अलग अलग कहानी होती है यार, हर जगह के अलग लोगों की अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं. And the life story of Kambhari is just like any other teenage boy. So without further ado, I want to get into it, alright? Let's talk about Kambhari and where he came from. August 19th, 1999. That is a lot younger जितना लोगों को लगा होगा, ठीक है ना. लोग यहाँ पे लोग बहुत हैं ऐसे जिन्हों को लगा होगा कि कामभारी काफ़ी एटलीस्ट 27-28 का होगा, बट नहीं. ही इज़ अ लॉट यंगर देन अ लॉट ऑफ अस, विच इज़ काइंड ऑफ अपसेटिंग, बट ठीक है, कोई बात नहीं. बोरीवली महाराष्ट्र, जैसे सबको पता ही है. Also, he is a self-defined lyricist, जो बहुत लोगों को नहीं पता है, because Kambhari is affiliated with a record label and he is an internationally recognized prospect. मतलब पूरे दुनिया में established नाम फैलाना is not a small thing. आपका content फैल सकता है, आपकी आर्ट फैल सकती है, लेकिन लोगों को ये recognize करना कि उस आर्ट के पीछे कौन है, इसके लिए टाइम लगता है. And the fact that someone like Kambhari has established to do that without being a completely flamboyant person. By that I mean, आप एमी वेबेंटा की पर्सनालिटी देख लो, ठीक है, समझ में आता है that he is a rapper, he is trying to put himself out there because he is trying to look all exuberant, he is trying to look all hip, ठीक है. आप डिवाइन को देख लो, he has a certain view, he has a certain thing about him. जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करता है, जिस तरीके से वो अपने आप को ड्रेस करता है, it shows. So it is more towards the likes of the old school 90s rappers. But Kambhari doesn't follow any of this. अगर आप Kambhari के अभी जब आगे चल के आप मैंने जो वीडियो प्रिपेयर किया वो देखोगे, he is just a normal बंदा है यार. आपको ऐसा लगेगा यार 7th में मेरे साथ था ये. He is that kind of a human being. But the distinguishing factor is he is a wizard. मतलब he is, भाई हिंदी में बोलते हैं जादूगर है बंदा when it comes to storytelling. For a storytelling person, myself, it is a dream to witness someone like Kambhari work, because Kambhari का reach when it comes to storytelling, भाई वो एक prospect, एक चीज़ जो उसने ज़िंदगी में कभी experience करी होगी, उसको लेके उसके बारे में पूरी कहानी लिख देता है, which is very very impressive, very engaging. आज के रैप में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग नहीं लिख पाते, which is story. लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में चार बास के बारे में चेंज करके जाके कुछ भी लिखते जाएंगे, about one thing, shifting after 4 bars to another thing, and then so on and so forth. लेकिन starting your song from one aspect, taking it all the way to the end, आखिरी बार और पहली बार अगर affiliated होगी ना, तो एक कहानी complete बोलते हैं लोग उसको. It is a full circle, which is very hard to accomplish. आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है अपनी आर्ट में, आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है इन लाइफ. लेकिन अगर आप अभी से फोकस कर दो इन ऑल ऑफ दैट, जैसे कामभारी ने किया, who is to say that you might not be the next big thing in hip hop music itself. तो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट करो यार. फॉर योर रीच, आपको खुद नहीं पता कि आपकी रीच क्या है इस वक्त. यू आर जस्ट एन आर्टिस्ट, यू हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ. आगे जाके आपको कामभारी की कहानी में भी जब पता चलेगा कि उसने भी कभी ये नहीं सोचा था कि वो ही विल बी एट द स्टेज वेयर ही इज टुडे, बट ही इज. फाइनली इन दिस स्लाइड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इंक रैकेट्स. बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा अबाउट इंक रैकेट्स, बहुत लोगों ने सुना होगा. But for those of you that don't know about Ink, I would like to mention it is a very new record label. बहुत नया record label है ये. As a matter of fact, it has originated after the release of Gully Boy. तो very new. लेकिन Ink is a very different record label. And this I can speak because of testimony. That Ink is a record label जो conventional idea of music follow नहीं करता. तो Ink is not just for musicians. Ink poets sign करता है, Ink आर्टिस्ट साइन करता है, डांसर्स साइन करता है, Ink सिंगर्स साइन करता है, म्यूजिशियंस साइन करता है, गिटारिस्ट्स, ड्रमर्स, डीजेज, सब कुछ. इट इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म विच वॉज मेड बाय आर्टिस्ट्स फॉर आर्टिस्ट. तो अगर आपका कुछ भी
आर्ट फॉर्म है जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो. द फैक्ट दैट यू आर देन टाइंग दैट इन एन कंप्लीटली डिफरेंट फाउंडेशन मैटर, जिसमें आप एक्टिवली पूरे हिंदुस्तान को छानते हो और ढूंढते हो ऐसे लोगों के लिए जिनको अपने आप को एक्सप्रेस करना है लेकिन उनके पास मीन्स नहीं है टू डू सो. दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंकिंग. अगर आप आज डेमो प्रिपेयर करके इंकिंग को भेजते हो और आपका डेमो इज़ वर्थ इट, आप कल इंकिंग को साइन हो सकते हो. इट इज़ जस्ट दैट सिंपल. तो कीप दैट इन माइंड. ऑफ कोर्स एज अ यंग म्यूजिशियन, एज अ न्यू अप एंड कमिंग आर्टिस्ट, आप सबको एक बात पता होनी चाहिए दैट नेवर रश इनटू इट. अगर आप अभी एक ऐसा पीस लिख के सबमिट करना चाहोगे जिसके बेसिस पे रिकॉर्ड लेबल आपको चुने या ना चुने, तो अगर आपने अपना ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, अगर आपने अपना रिसर्च नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यार कि आपको नहीं साइन होगे आप. और वो एक बहुत डीमोरलाइजिंग इफेक्ट पड़ जाता है एक आर्टिस्ट पे. आपको लगता है कि यार कि मेरे को साइन क्यों नहीं कर रहे, मेरे में क्या कमी है. लेकिन वो बात नहीं है यार, आपकी आर्ट अभी कल्टिवेट हो रही है. तो डोंट जंप द गन. जैसे इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, डोंट एवर जंप द गन. मतलब अपना टाइम लो हर चीज़ के लिए. कभी भी प्रीएम्प्टिवली ये मत सोच लो कि अभी मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, बिकॉज आपको खुद नहीं पता कि आप उस चीज़ के लिए अभी तक तैयार नहीं हो. गिव इट टाइम. विद दैट a little bit more about inking, जिसको ये पढ़ना है, you guys can go through it. But this one very interesting fact about this record label is Ranveer Singh is a very big investor in this record label. You could see he's part owner of the record label. So he's not part of active duty operations. लेकिन रणवीर सिंह is affiliated with a lot of the artists. जैसे अगर आप इस record label को sign होते हो, then you have very close relationships with him because he is someone who is very expressive. And he loves working with artists. तो आप कुछ भी पीस बना रहे होगे या आपका म्यूजिक वीडियो बन रहा होगा, तो रणवीर सिंह विल कम इन, एक शॉट में कैमियो दे देगा. या आप अगर आप पेंट कर रहे हो कुछ, तो आपका पेंटिंग शेयर कर देगा ऑन हिज इंस्टाग्राम विच हैज़ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल. आपकी अगर कोई पोएम है विच ही रियली लाइक्स, ही शेयर विद हिज बॉलीवुड फ्रेंड्स एंड कलीग्स. तो दिस इज़ अनदर आई वुड से एन एडिशन टू द इंकिंग फैमिली, कि अगर आपके पास एक बॉलीवुड पर्सनालिटी का बैकिंग है इन टर्म्स ऑफ हिज रीच, उसकी ऑफकोर्स ही इज एन एक्टर, उसकी रीच बहुत ज़्यादा वाइड है. तो इफ़ ही शेयरिंग योर वर्क, आपकी आर्टिस्टिक रीच बढ़ जाती है काफ़ी. तो दिस वॉज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट्स कि इंकिंग सक्सेसफुल हुआ क्यों, स्पेशली व्हेन इट जस्ट केम आउट, जब ऑलरेडी इंडस्ट्री में इतने रिकॉर्ड लेबल्स मौजूद थे. बट दिस इज एग्जैक्टली वाई दैट हैपेंड, बिकॉज दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्लॉइंग बिहाइंड देम. एंड of course, let's not forget the Ranveer Singh factor as well. With that, I want to get to the collection itself of the tracks that have been made by Kambhari. लेकिन Kambhari has been in the game for so long यार, कि इंकिंग के पहले भी there were so many, you can say, releases which were not official. So I am not going to dive into the number of unofficial releases that Kambhari has, the number of random features or random 4 bar that he has performed, और जो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लिप में मौजूद है. लाइक बिकॉज काम्भारी इज़ अ वेरी ऑथेंटिक ह्यूमन बींग एंड ही कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फ्री स्टाइलिंग. ही हैज़ परफॉर्म्ड एनीवेयर एंड एवरीवेयर. टुवर्ड्स द एंड एक पीस प्रेजेंट करूँगा मैं आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ अ वीडियो जो मैंने प्रिपेयर किया है, एंड इन दैट यू विल नो एग्जैक्टली कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. द फैक्ट कि समवन लाइक काम्भारी जो इतना इस्टेब्लिश हो चुका है दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन स्टिल इतना हम्बल है, ये एक बहुत आई ओपनिंग चीज़ होती है यार लोगों के लिए. क्योंकि अक्सर जैसे सब लोगों को पता है यार, मनी चेंजेस पीपल. पैसा लोगों को कंप्लीटली चेंज कर सकता है, और अगर फेम और पैसा एक साथ आ जाता है इंसान के पास, देन यू सर्टन टाइम्स पीपल अपना डायरेक्शन खो देते हैं. और बहुत आर्टिस्ट हैं इस दुनिया में जो आप इस ब्रैकेट में, जिसके बारे में अभी बातें कर रहा हूँ मैं, उस ब्रैकेट में वो फिट कर सकते हो आप. एंड आई डोंट हैव टू नेम दोज आर्टिस्ट, आपको खुद पता है. शायद वो आपका फेवरेट आर्टिस्ट थे एक टाइम पे, एंड बिकॉज ऑफ देयर फॉल आपको यू स्टॉप लिसनिंग टू देम. ऐसा बहुत होता है. बट समवन लाइक काम्भारी, आफ्टर ही एफिलिएटेड हिमसेल्फ विद द record label, has put out amazing music. So we'll jump into that first. We'll jump into the content that is already out there, the collection of Kambhari, but with Ink Ink Records. So we have Zeher. Now the first official release on Ink Ink Records, March 29th, 2019. An amazing track, but an even more amazing story. Now अगर किसी ने यहाँ पे जहर नहीं सुना है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एटलीस्ट इस सेशन के बाद जाके थोड़ा बहुत काम्भारी के
ट्रैक्स को सुनो। यूट्यूब पे काम भारी का चैनल नहीं है, सो यू गाइज हैव टू गो टू इंक इंक रैकेट्स का यूट्यूब चैनल। इंक इंक रैकेट्स हैज़ रिलीज्ड ऑल ऑफ काम भारीज म्यूजिक, जैसे रैकेट लेबल्स यूजली करते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप लोगों ने यूट्यूब में सर्च करने की कोशिश करी होगी अबाउट काम भारी एंड अलग अलग वेंचर्स ऑफ हिम, आपको नहीं मिले होंगे। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। बट अगर आप काम भारी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, ही यूजुअली गोज लाइव समटाइम्स वो कुछ भी पोस्ट करेगा। ही इज़ अ वेरी बिग आर्टिस्टिक पर्सन हिमसेल्फ, तो ही ड्रॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो पोस्ट कर देगा। इट इज़ वेरी humbling to see someone who's living his life and enjoying it to the fullest because he never expected कि ये level उसको मिल सकता है। So Zehar was his breakout track, first track released on Ink Ink Records। और इस ट्रैक के बाद उसका डील रिन्यू हुआ। इस ट्रैक के बाद उसको completely established किया गया as a forefront of the record label। तो Ink Ink Records का हायर अगर आप देखोगे, and by हायर किया I mean कि Ink Ink Records के लिए जितने आर्टिस्ट हैं उसके लेवल्स क्या हैं। सबसे पहले अगर एक रैकेट लेबल का आर्टिस्ट देखा जाता है तो ऑफ कोर्स इज़ द बिगेस्ट नेम फॉर द रैकेट लेबल। जैसे अगर हम बात करें ओल्ड स्कूल यंग मनी कैश मनी की, तो जब ड्रेक नया साइन हुआ था टू YMCMB, ड्रेक वाज द फोर फ्रंट ऑफ YMCMB। उसके पहले द YMCMB क्रिएटर हिमसेल्फ लिल वेन वाज द फेस ऑफ YMCMB। आफ्टर दैट निकी मिनाज बिकेम द फेस ऑफ YMCMB। तो ये होता है, एवरी टाइम अ न्यू आर्टिस्ट जॉइन्स अ रैकेट लेबल, इट कीप्स स्विचिंग। After Zehar came a very intimate track to Maharashtra। तो महाराष्ट्र में जैसे जब नवरात्रे होते हैं तो बंगाल इज़ वेरी वेरी हैपनिंग, वहाँ पे बहुत लोग मानते हैं एंड इट इज़ वेरी रिच द कल्चर देयर। द सेम गोज़ फॉर महाराष्ट्र। जब गणपति का टाइम आता है महाराष्ट्र में, तो भाई आपको कोई आइडिया नहीं है द स्केल ऑफ विच जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली इन बॉम्बे। बिल्डिंगों के साइज के गणपति के आइडल्स बनते हैं इन बॉम्बे। लोग बहुत मानते हैं गणपति बापा को इन महाराष्ट्र एंड ऑफ कोर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एज वेल, बट स्पेसिफिकली इन महाराष्ट्र बिकॉज दिस फेस्टिवल इज वेरी रिच इन महाराष्ट्रन हिस्ट्री। September the 2nd क्यों? बिकॉज September the 2nd इज यूजली द डेट जब गणपति इस्टेब्लिश करते हैं। सो गणपति इज सिमिलर टू नवरात्र की थोड़े ड्यूरेशन के डेज के लिए उनको घर में रखा जाता है एंड देन टूवर्ड्स द एंड ऑफ दैट उनका विसर्जन किया जाता है एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट इज़ अ वेरी हैपनिंग थिंग। आपको बहुत ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह में भी जब आप पार्टीज़ जब रोड फंक्शंस होते हैं, जब स्ट्रीट्स में लोग डीजे सेटअप लगा के नाचते हैं उनके सामने, दैट इज़ यूजुअली द टाइम ऑफ गणपति। अगर आपने कहीं पे भी वीडियोज़ देखे होंगे तो इट इज़ बेसिकली गणपति का टाइम, जब इतने सारे लोग कम टुगेदर फॉर अ वेरी ऑथेंटिक, इफ आई वुड, रिलीजियस एक्सपीरियंस। लोग बहुत अब्रॉड से लोग आते हैं यार टू विटनेस दिस फेस्टिवल इन बॉम्बे। इतना फेमस फेस्टिवल होता है ये। But yes, this track was aimed particularly for this given time because Kambhari is also very authentic in terms of his beliefs of Ganpati. So it was a choice. And as you guys can see, Ink Ink, second track released by them. Then we went to his first romantic piece. Very shocking thing about Kambhari, I know, but he loves writing romantic music. लव सॉन्ग्स बहुत पसंद है काम भारी को एंड ही लव्स राइटिंग इंटीमेट ट्रैक्स, लव स्टोरीज एंड थिंग्स ऑफ दैट ऑर्डर। तो हिज थर्ड ट्रैक ऑन इंक इंक ऑन October the 5th, so you can see already a pattern emerging. Multiple records are being released. 2019 में he has already released 3 tracks by now, and this track Mohabbat was his first official track which reached out to a whole different audience. एन ऑडियंस जो रैप म्यूज़िक सुनते नहीं थे लेकिन पॉप म्यूज़िक सुनते थे, क्योंकि उनको लव के गाने बहुत पसंद हैं, सिमिलर टू जो पॉप म्यूज़िक के फैंस हैं। लेकिन ये ट्रैक एक ऐसा ट्रैक था कि इट रीच्ड आउट टू अ होल डिफरेंट ऑडियंस। पोइट्री के लोग इस गाने को सुनते थे, स्टैंड अप के लोग इस गाने को सुनते थे, एंड बाय स्टैंड अप आई मीन स्लैम पोइट्री ऑडियंसेस, नॉट स्टैंड अप कॉमेडी। थर्ड वाज पीपल इन द रैप कम्युनिटी हु वर कंप्लीटली ब्लोन अवे बाय दिस। यहाँ पे अगर किसी ने MTV हसल देखा है तो आपको एक चीज़ याद होगी that this track was also performed live, which was a very different experience। क्योंकि इस गाने का अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आता है कि अच्छा इस डायरेक्शन में गाना जा रहा है, लेकिन इस गाने को लिखा इस तरीके से गया है ना कि इट इज़ वेरी अब्रप्ट। फ्लो इस गाने का बहुत ज़्यादा स्विच हो जाता है।
तो जब भी कोई आपको बोलता है ना कि एक रैप गाना रिलीज करने में फ्लो बहुत मैटर करता है, स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है, अगर तेरे 4 वर्स के बाद तूने एक पंच लाइन नहीं डाली, अगर तूने हुक नहीं बनाया तो तेरा गाना हिट नहीं हो सकता, दैट्स ऑल नॉनसेंस। आज के दिन में इट इज़ अबाउट योर स्टोरी। आप कौन सी कहानी प्रेजेंट कर रहे हो बिफोर द ऑडियंस, आपकी कहानी कितनी रिलेटेबल है, कितने लोग उस कहानी को सुन के ये बोल सकते हैं कि हाँ यार, जो इस बंदे ने फील करके ये लिखा है वो मैं फील कर सकता हूँ थ्रू लिसनिंग टू हिज आर्ट, विच वॉज द इंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सॉन्ग। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आपने कामभारी का कोई गाना नहीं सुना है तो ये गाना पहले जाके सुनो, सो दैट आपका जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो कंप्लीटली ख़त्म ही हो जाए कि कामभारी एक आर्टिस्ट किस एस्पेक्ट का आर्टिस्ट है। बिकॉज ऑफ कोर्स कन्वेंशनल रैप, कन्वेंशनल डिलीवरी इज़ देयर, कामभारी ने भी डिलीवर किया है बहुत गाने में से, लेकिन द फैक्ट कि आप एक ऐसा गाना बना सकते हो विच इज़ ओनली योर 3rd ट्रैक ऑन अ record label and they were very happy releasing this song. Ink Ink was completely on board. तो यही होता है यार, एज एन आर्टिस्ट आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। कामभारी हैज़ बिन राइटिंग लव सॉन्ग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन रिलीज़ करने की जब बारी आई, ही हैड अ से इन इट। वो बोल सका कि मुझे एक लव सॉन्ग रिलीज़ करना है, एंड द record label hopped on board because उस टाइम तक उसने अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर ली थी। उसने ये दिखा दिया था कि वो एक आर्टिस्ट किस लेवल का है और उसकी रीच कितनी है टूवर्ड्स द रेगुलर पीपल। मूविंग ऑन, we've got a very new age track. So a new age track is a track which has a lot of fusion. There is an artist signed with Ink Ink called Nuka. She is an amazing artist, but she is a new age artist. So she is a spoken word poet as well as a singer, as well as a songwriter. But as I mentioned, Ink Ink एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अलग अलग जॉनरा के लोगों को एक जगह जोड़ रहे हो। So you're finding poets who are a part of a rap song. You're finding rappers who are part of pop songs. You're finding all 3 of them being a part of a song that has no conventional value. मतलब उस गाने का कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी भी जगह डाल के बोल सकते हो कि इस जॉनरा का फिट है ये, क्योंकि उस गाने का स्ट्रक्चर ही इतना डिस्टिंग्विश्ड है। When this song came out, January 20th, 2020, it was very shocking, क्योंकि ऐसा गाना लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक रियलिटी चेक बोलते हैं एक तरीके से, कि दुनिया के सामने शीशा रख दिया आपने, एंड देन यू लाइक कि रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ। दिस सॉन्ग की आइडेंटिटी वाज दैट, इट वाज अ सोशल स्टेटमेंट, एंड दिस वाज वन ऑफ देयर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। इंक इंक का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वाज एओ बर्न। ये भी इज़ अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग म्यूजिक वीडियो। अगर आप लोगों को ये चेकआउट करना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, यू गाइस कैन हेड ऑन ओवर टू यूट्यूब, मेक श्योर इंक इंक रिकॉर्ड्स को आप सर्च करो, and then you can find all of these tracks on there, because this song has Kambhari as a feature, but this is not only Kambhari, this is multiple artists who are not just rappers or musicians. Moving on, we have Vichar. Now this is also this is more towards the conventional side of things. जैसे आप expect करते हो कि गली गैंग का अगर एक आर्टिस्ट है वो किस एस्पेक्ट से गाना डिलीवर करेगा, more towards the original aspects of old school rap या new age rap. लेकिन when you're looking at Ink Ink records, you're looking at a completely different side of things. आप ये देख रहे हो कि आर्टिस्ट किस तरीके से अपना गाना डिलीवर करना चाहेगा। ये गाना जिस आर्टिस्ट ने जिस माइंडसेट में लिखा है, क्या वो उसी माइंडसेट में उसको डिलीवर करना चाह रहा है, या कोई और उसको बोल रहा है कि नहीं इस एस्पेक्ट में मत तो डिलीवर कर, तो इस तरीके से डिलीवर करने की कोशिश कर। और अगर वो उस चीज़ को मान लेता है तो उस आर्टिस्ट का जो ओरिजिनल थॉट प्रोसेस था वो कितना रह गया उस गाने में। देयर इज़ अ होल थिंग अबाउट दिस इन record labels. सबसे बड़ा चीज़ यही होता है record labels में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ विजन्स ऑफ द सॉन्ग। लेकिन once you are an artist who has most of the control over what you release, then you have a say in things. कमल सिंह, आपको कुछ कहना है? हाँ जी, मुझे कहना है सर। हाय। हाँ जी सर, जैसा आपने कहा कि एक आर्टिस्ट कैसे खुद को प्रेजेंट करना चाहता है, मैं मतलब ये पहले रेज करना चाह रहा था। हाथ में मोहब्बत कर दे तुमसे जो ट्रैक था, मैंने उसके बाद लिखना शुरू किया था, और मैं एक मतलब माइंडसेट में था, मैंने उस टाइम कुछ लिखा, बट मैं उसको मतलब मेरे को बीट का काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहा, क्योंकि ये बीट का मेरे को नहीं पता था कि भाई मतलब खुद को प्रेजेंट करने के लिए, रैप में आने के लिए, ऐसा कुछ हिट होने के लिए लिखने के साथ साथ मेरे को बीट का भी वो करना पड़ा, बिल्कुल नया था मैं। तो अब मैं मतलब
मैंने लिखा उसे, मैंने काफी कुछ सुनाया उसे, मतलब चाय पीने जाते थे जिधर बैठते हैं अपन लोग, वहां पे बैठ के मैंने सुनाया, काफी को पसंद आया। रैंडमली मैं किसी को भी सुनाता था, उन्हें पसंद आता था। तो कुछ ऐसे भी लोग मिले मुझे जो आर्टिस्ट थे, जो लिखते थे खुद से। हर किसी ने मतलब, मैं उनके मतलब एक बीट पे जब मैं करने की कोशिश करता, मैं बीट पे नहीं पकड़ पा रहा था कि मतलब मुझे एग्जैक्टली कौन सी बीट चाहिए, कैसे चाहिए। बट मैं जब वैसे सुनाता था बिना बीट के, तो वो काफी अच्छा लगता था। मतलब एक फ्लो भी रहता था उसमें, सब कुछ हो रहता था, बट बीट हमेशा मिसिंग रहते। इस पे कुछ एक बात पूछूं मैं आपसे? कैसे? जी जी जी। आपको क्यों लगता है कि आपने जो लिखा है उसको एक बीट की जरूरत है? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि है ना, थोड़ा मतलब जैसा मैं सुनाता हूँ, मेरे को खुद एक मतलब एक वो होता है, घूस बम्प टाइप आ जाता है कई बार, मतलब एक अदर एड्रेनलिन कुछ टाइप, मतलब समझते हैं ना, पंप टाइप आता है, और मतलब कुछ ऑफ कोर्स, क्योंकि आप अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस कर रहे हो। आपके अंदर जो सेंसेशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जिसके बेसिस पे आपने ये सब लिखा है, आप उसको पुट आउट कर रहे हो। लेकिन एक बीट डजंट डिफाइन दैट फॉर यू, समझ रहे हो? आपको एक बीट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम, अगर आपको पता है कि सोशली आपको अप्रूवल मिल चुका है ऑलरेडी कि पीस बहुत बढ़िया पीस है, आपने रैंडम लोगों को सुनाया, रैंडम लोगों ने आपको बोला यार बहुत बढ़िया पीस है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जितने ज़्यादा लोगों के सामने रख सकते हो ये पीस, उतने ज़्यादा लोगों के सामने ये पीस रखो। और उसका सबसे बड़ा तरीका क्या है? वीडियो बनाओ, या तो इंस्टाग्राम पे डालो या यूट्यूब पे डालो। आपको एक बीट की ज़रूरत नहीं है अनटिल आप एक प्रॉपर कमर्शियल गाना रिलीज करना चाह रहे हो, ठीक है? अभी आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, आप चाहते हो कि लोग समझें आपको, है ना? जी जी जी। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप एक गाने को जितना स्ट्रक्चर्ड कन्वेंशनल तरीका है गाना, जिस तरीके को जिसको गाना बोलते हैं, आपका ये आइडिया आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मैं इसको जितना गाने लायक बना सकता हूँ उतना बनाऊँ। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं अपने थॉट्स को कैसे सामने रखूँ। और अगर आपने बिना बीट के इसको प्रेजेंट किया ना, आपके लिरिक्स पे लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, समझ रहे हो? इट फोर्सेस द ऑडियंस टू लिसन टू यू बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स टू लिसन टू, समझ रहे हो? तो 110% भाई मेरे ओपिनियन से आपको एक 60 सेकंड्स का वीडियो बना देना चाहिए एटलीस्ट, और सिर्फ उसको रिलीज करके देखो, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, समझ रहे हो? सर मेरे को 2 डाउट है एक्चुअली। हाँ जी। आपने ये जो बात बोली, इसी पे मेरे को याद आया कि मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे मतलब डाला था, लाइव किया था मैंने, तो उस पे मैंने इसको सुनाया, तो उसमें मतलब क्या हुआ कि मतलब कुछ लोगों ने मतलब उसके बारे में वो किया, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं डिमोरलाइज हो गया, मतलब मेरे भाई अपने आप में मतलब लो फील करने लग गया शायद, है ना, मतलब शायद ये पीस नहीं है ऐसा। मैंने मतलब ऑलमोस्ट ना 1 साल होने को हो रहा है, मैं मतलब एक बात मेरा बताओ, पहले आपने मोहब्बत करते तुमसे गाने के बाद लिखना चालू किया, आपने कभी उस गाने के नीचे कमेंट सेक्शन में चीजें पढ़ी हैं? कितने लोगों ने क्या क्या बुरा बुरा बोला है उस गाने के बारे में, काम भारी के बारे में? बिल्कुल नहीं। लेकिन भाई अगर आप देखोगे, आप शॉक हो जाओगे कि इतने लोगों ने इतना बुरा भरा बोल दिया है। क्या फर्क पड़ा किसी को? क्या काम भारी को फर्क पड़ा? नहीं। एज एन आर्टिस्ट भाई आपके पास ऐसे बहुत लोग मिलेंगे पूरी जिंदगी में आपको, जो आपको सिर्फ नीचे खींचना चाहते हैं यार, जो आपके बारे में सिर्फ बुरा बोलेंगे, आपके म्यूजिक के बारे में बुरा बोलेंगे। लेकिन डिफरेंस ये है कि आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। आपको बस वो सेकंड टाइप ऑफ इंसान को ढूंढना है और उनके जैसे लोगों के साथ रहना है, समझ रहे हो? ये कम्युनिटी जो हमने बनाई है फ्रंट रो की, इस कम्युनिटी में आपको हमेशा वो सेकंड टाइप के लोग मिलेंगे जो आपको यहाँ डीमोरलाइज नहीं करने आए हैं, जो यहाँ पे आपका मोरल बूस्ट करने आए हैं और आपको नए हाइट्स पे पहुंचने के लिए हेल्प करने आए हैं। तो कमल भाई आप यहाँ आते रहो, ठीक है? आप पीसेस लिखते रहो, और आपको जो भी ओपिनियंस चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। यस इशिता, हाँ जी बताइए। तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने जब भी लिखा है कुछ, तो वो एकदम से इमोशनली होता है, कभी ऐसे हैप्पी टाइप का कुछ मैं लिख नहीं सकती, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ ऐसा मतलब अलग सा कुछ बहुत होता है मतलब हैप्पी बीट्स कुछ लिखो ऐसा। मैं हाँ जी मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, ठीक है? बिकॉज ये मैंने बहुत नोटिस किया है, जो नए आर्टिस्ट आते हैं उनके साथ बहुत होता है। ये क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि आपने अभी अभी अपने आप को एक्सप्रेस करना चालू किया है। इसके पहले आपके पास आउटपुट नहीं था अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो जब भी आप एक टैप खोलते हो, टैप में जो टंकी से पानी आता है
वो हमेशा जो नया पानी है वो नहीं आ जाता ना, जो पाइप में ऑलरेडी पानी था पहले वो आ जाएगा ना। सबसे ईजिएस्ट एनालॉजी है समझने के लिए कि आप जब अपने आप दिमाग का टैप खोल रहे हो तो आपके पहले जो सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं वो पहले निकलेंगे। आप जब अपने सारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते जाओगे ट्रू टू देयर नेचर, उसके बाद आप अपने आप आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा एज एन आर्टिस्ट। अगर आपको अभी सिर्फ इमोशनल चीज़ों के बारे में लिखना आ रहा है तो आप अभी सिर्फ इमोशनल चीज़ों के बारे में लिखो यार, बिकॉज वो कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर होके आ रहा है ना। अपने आप को रोको मत एज एन आर्टिस्ट टू रियलाइज योर पोटेंशियल्स, समझ रहे हो? अगर आप फोर्स करोगे अपने आप को कि नहीं मुझे सिर्फ इस टाइप के बारे में लिखना है, इस टाइप के बारे में लिखना है, इस टाइप के बारे में लिखना है, बट दैट विल नॉट बी ट्रू टू हु यू आर एज एन आर्टिस्ट। आप लिख दोगे लेकिन आपको खुद उस पीस से कुछ ना कुछ कमी मिलती जाएगी, बिकॉज आपने उस पीस को लिखते वक्त वो फील नहीं किया जो आप हमेशा फील करते हो। यू अंडरस्टैंड? अपने आप को टाइम दो टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट, टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल, और पीसेस लिखना कभी मत छोड़ो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने आप एक पीस को एक हैप्पी माइंडसेट से चालू करोगे, एक हैप्पी थॉट से चालू करोगे, हैप्पी इंस्पिरेशन से चालू करोगे, और जब वो होगा ना तो आपका पीस सैड नहीं होगा, आपका पीस ऑथेंटिक होगा और हैप्पी होगा। बस ठीक है, उस पर फोकस करो। चलो लेट्स मूव ऑन नाउ टू द नेक्स्ट ट्रैक ऑन द लाइनअप। नाउ as we were mentioning when we were talking about विचार, कि this was a track जो बहुत conventional था in terms of delivery, in terms of putting together, in terms of structure। ये गाना सुन के लोग बोलते थे कि हाँ यार अब समझ में आ रहा है कि ये बॉम्बे बेस्ड रैपर है, क्योंकि एक ऑफिशियल टोन हो जाती है यार बॉम्बे बेस्ड रैपर्स की। ऑफ कोर्स हर एरिया का एक इन्फ्लुएंस होता है ऑन इट्स आर्टिस्ट, ऑन इट्स पीपल इनफैक्ट, और उसको देखना इज़ वेरी ईजी व्हेन यू लुक इनटू इट, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि समझ में आ जाता है कि कौन कहाँ से है, कौन कौन से पोर्शन ऑफ द ग्लोब को बिलोंग करता है, कौन सी कम्युनिटी से इन्फ्लुएंस्ड है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, स्पेशली अगर आप वहाँ रहते हो, आपको आराम से दिख के आ जाता है। जैसे अगर कोई आपके एरिया से कल बहुत बड़ा फेमस रैपर बन गया, आपको उसकी टेंडेंसीज समझ में आएंगी, बिकॉज वो आपके एरिया की टेंडेंसीज हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है। देन वी मूव ऑन टू वाइट कॉलर, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग रिलीजेज बाय काम भारी and another person of course by the name of Sick Flip, but we're going to leave that for another breakdown session. काम भारी ने ये जो गाना निकाला था, this was about white collar workers of society, because जैसे हम आगे जाके जो मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो पीस पुट टुगेदर किया है, जब हम उसको देखेंगे आपको समझ में आएगा कि काम भारी की रूट्स क्या हैं यार, कि बिकॉज ही इज़ कम फ्रॉम नथिंग, ही इज़ कम फ्रॉम कंप्लीट मिडिल क्लास से भी you can say substantially lower background, and today he is earning so good for his family, लेकिन अभी भी उसकी फैमिली उसी घर में रह रही है जो पिछले 20 साल से रह रही थी, बिकॉज बॉम्बे का आपको हाल पता है, ठीक है। प्लस काम भारी नेवर मूव्ड आउट ऑफ कांदिवली, विच इज़ अ वेरी कमेंडेबल थिंग टू से। लोग अक्सर जहाँ से आते हैं उसको भूल के निकल जाते हैं, ठीक है। मोस्टली आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। गली गैंग के स्पेशली डिवाइन के बहुत गानों में आपने 5-9 सुना होगा, सेम टू डू विद काम भारी, 101। दीज आर नथिंग बट शाउट आउट्स टू वेयर दे कम फ्रॉम। इट्स अ वेरी ऑथेंटिक थिंग जो वेस्ट के कल्चर से आया है। वेस्ट में भी बहुत रैपर्स थे जो अपने एरिया कोड सिटीज़ रिप्रेजेंट करते थे एट ऑल टाइम्स। इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ हम्बली रिप्रेजेंटिंग टू दी ऑडियंस जो आपका म्यूजिक कंज्यूम कर रही है कि मेरी कहानी कहाँ से चालू हुई थी, राइट। इट्स अ वेरी ऑथेंटिक थिंग टू डू एज एन आर्टिस्ट। देन वी गो ऑन टू और करो, December 22nd 2020 का आखिरी गाना, बट अ सॉन्ग दैट वाज कम्प्लीटली इनसेन। इस गाने के जो फ्लो के अगर आप बात करोगे, इट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ लेट्स से Eminem Kamikaze, because it was inspired heavily by that kind of delivery. I'm not saying that kind of music, that kind of delivery. Same to do with numerous other artists. ये गाना was a very revolutionary song for Kam Bhari because it was about what kind of weird aspect he brings to the table. मतलब क्या? See, Kam Bhari by all aspects of the imagination is a very good artist. लेकिन हर एक बंदा एक यूनिक चीज़ लेके आता है टू द टेबल, ऑलराइट। शायद वो आपकी पर्सनैलिटी है, शायद वो आपका कोई यूनिक टैलेंट है, शायद वो आपका बस गूफी नेचर है,
इट कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, लेकिन एक ऐसी चीज़ हमेशा एक इंसान के बारे में होती है जो उसको डिस्टिंग्विश कर देती है कि अगर एक ग्रुप में 20 लोग खड़े हैं, आप उस पर्सनालिटी ट्रेट के बेसिस पे उस बंदे को आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आप ब्लाइंड फोल्डेड हो और आप सिर्फ उनकी कॉन्वर्सेशंस को सुन रहे हो। तो सर्टन ट्रेट्स ऑफ एन आर्टिस्ट अपने आप एस्टैब्लिश हो जाते हैं। 4 songs deep into Ink Ink, he has now cultivated a sound. He has now cultivated a presence of his own. He is now more free in his expressing, which is a very important thing for an artist. Especially जब आप इस इंडस्ट्री में एक record label के साथ joint हो for all of your releases, you have to be happy with that record label. अगर आप उन record label के साथ clash कर रहे हो, अगर आपके पास creative differences हैं, तो that is all bad news for your future, for your career. तो एक record deals के बारे में आपने बहुत कुछ बुरा सुना होगा कि record label ये है, record label वो है, आपको artistically crush कर देता है, आपके rights चुरा लेता है and all of that. लेकिन हाँ यार, एक ये भी point है कि ऐसे भी बहुत आर्टिस्ट हैं आज के दिन में जो record labels के साथ signed हैं और जो बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि they are with the record labels जो उनको समझते हैं, they are with the record labels जो उनके artistic vision को समझते हैं, जो उनको फोर्स नहीं करते टू गो इन अ डायरेक्शन जो आर्टिस्ट के लाइन ऑफ वर्क में है ही नहीं। सो इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग योर राइट फिट। अगर आप एक प्रॉपर फिट ढूंढ लेते हो अपने लिए, तो आपकी पूरी लाइफ टाइम आप सॉर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर म्यूजिक करियर। इट जस्ट हैज़ टू बी वन थिंग कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये मेरे लिए, बिकॉज म्यूजिक इज अबाउट वन थिंग व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्ड लेबल्स, विच इज़ लॉयल्टी. If you are an artist, and this I'm talking about experience because this is exactly how we as people who would curate new talent, we would define it to them कि loyalty is everything in a record label. जितना आप एक record label के साथ loyal रहोगे, उतना ही वो record label आपके साथ loyal रहेगा. Now of course this is a given कि आपका creative vision उस record label के creative vision के साथ match करे perfectly. That is what as an artist, जहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट मौजूद हैं, अगर आप फ्यूचर में अपने आप को देखते हो साइनिंग विद अ रिकॉर्ड लेबल, साइनिंग अ रिकॉर्ड डील, आई वांट यू टू देन पिक्चर दिस एज वेल कि आप किसी भी रिकॉर्ड लेबल को अप्रोच मत करो, किसी भी रिकॉर्ड लेबल के साथ डील साइन मत करो. डू योर रिसर्च. पहले ये देखो कि उस रिकॉर्ड लेबल का विजन क्या है, उस रिकॉर्ड लेबल का डेफिनेशन क्या है, उस रिकॉर्ड लेबल ने किस तरीके के गाने रिलीज करे हैं यार. एवरीवन वांट्स अ रिकॉर्ड डील, ठीक है, सबको रिकॉर्ड डील चाहिए होती है, स्पेशली जब नए नए आर्टिस्ट आते हैं, क्योंकि सबको फाइनेंशियल रेमेडी चाहिए. सबको घर में दिखाना है कि ये देखो ये पैसा मैंने अपने आर्ट से कमाया, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट इमोशन. लेकिन आप प्रीएम्प्टिवली गलत डिसीजन कभी भी मत लो एज एन आर्टिस्ट. इफ यू टेक द राइट डिसीजंस, यू कैन बी लाइक काम भारी एंड बी अ पार्ट ऑफ Ink Ink Records and release any track of any direction, of any expression, जो भी आपको चाहिए, because as an artist आपके ऊपर है कि आप क्या express करना चाहते हो. Very beautiful sentiment. Future releases of Kam Bhari. Now everyone knows who Ritviz is, and Ritviz's new album is coming out, which has 22 tracks in 22 weeks, and a few of them, I would say, not certain about a proper number yet, but he has features with Ritviz. Kam Bhari featuring Ritviz on a song. Ritviz is an amazing indie producer, as you guys possibly know. Those of you who don't know, Ritviz is a producer. He is an indie musician, and he's a trained classical singer as well. Kam Bhari's releases with Ritviz is something that I'm really looking forward to, because it's going to be an amazing collaboration. Also, Gully Gang के साथ collaborations are coming. Long time coming, but yes, they are coming. Starting में there was a little conflict of interest kind of thing. We will not get into why have certain artists not released songs with each other. वरना लोग बोलने लगेंगे कि रफ्तार ने क्यों नहीं रिलीज़ किया गाना काम भारी के साथ, या रफ्तार ने अभी तक डिवाइन के साथ मिल के, 7 बंटाइज के साथ मिल के अभी तक कोई बड़ा कोलैबोरेशन क्यों नहीं किया. There are a lot of reasons यार. Most of them are legal nonsense, जो अक्सर होता है when it comes to record labels. तो हाँ, ये एक ड्रॉबैक हो जाता है for you as an artist कि अगर आपको as an artist अपने record label के बाहर लोगों के साथ collaborate करना है ना, तो वो थोड़ा it is a पंगा. But हाँ, more tracks on Ink Ink are coming, more tracks, more official releases by Kam Bhari himself. तो that is another thing that एक बहुत impressive catalog तैयार कर रही है.
सी इंक एज अ record label कामभारी को रोक नहीं रहा from whatever he wants to express, but कामभारी himself is also not stopping him from what he wants to express. In terms of he's not afraid to release a love song जैसे मोहब्बत है. He's not afraid to release a song like Zehar. He's not afraid to release a song like Vichar either. He's not afraid to release a completely religious oriented song, गणपति आला रे. तो एज एन आर्टिस्ट वो अपने आप को लिमिट नहीं कर रहा है एक डायरेक्शन में कि मैं सिर्फ इस टाइप का म्यूजिक बनाऊंगा. ही इज लिमिटिंग हिमसेल्फ टू द जॉनरा ऑफ रैप, क्योंकि सिर्फ उसको रैप ही आता है. अगर वो सिंग कर सकता तो वो सिंगिंग भी इनकॉर्पोरेट कर देता है. एंड हु नोज, मे बी फ्यूचर में कामभारी रिलीज अ सिंगिंग ट्रैक एज वेल. द पॉइंट इज एज एन आर्टिस्ट ही इज नॉट लिमिटिंग हिमसेल्फ. तो यहाँ जितने भी आर्टिस्ट हैं जिन लोगों को लगता है कि यार मैं इस इंडस्ट्री से निकल के इस बंदे के साथ कैसे अपने आप को एफिलिएट कर दूं क्योंकि ये बंदा तो रैप नहीं करता, दैट इज नॉनसेंस. अगर आप एक एक्सप्रेसिव ट्रैक क्रिएट कर सकते हो विच इज गिविंग यू द एबिलिटी टू टेल योर स्टोरी, विच इज गिविंग दैट अदर पर्सन द एबिलिटी टू कम विथ यू ऑन द जर्नी टू टेल योर स्टोरी टुगेदर, देन व्हाई द हेल नॉट. कभी भी अपने आप को लिमिट मत करो यार इन टर्म्स ऑफ योर पोटेंशियल टू रीच मोर ऑडियंस, टू रीच फ्रेशर पीपल who have never consumed your music before, but love the fact that you tell a story. इस दुनिया में आपको बहुत लोग मिलेंगे which are authentic curators of music, जिनको म्यूजिक सुनना है लेकिन एक लेवल पे सुनना है, कुछ भी नहीं सुनना उनको एक कहानी सुननी है. And if you can bring that to the table, they will follow you for the rest of your career, which is very significant. The family behind the man, very modest photo, कुछ हाई फाई नहीं, कुछ ज़्यादा फ्लैम्बॉयंस नहीं, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट यार. एज एन आर्टिस्ट कामभारी इज पॉसिबली द मोस्ट एफिलिएटेड आर्टिस्ट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस ऑफ इंडिया. सब लोग रिलेट करते हैं कामभारी से, क्योंकि भाई समवन हु कम्स फ्रॉम नथिंग इन दिस वर्ल्ड, वो हमेशा वो पूरे स्पेक्ट्रम की ऑडियंस अपने साथ लेके चलता है. अगर आप कुछ भी नहीं थे और आप आज सब कुछ हो ना, तो वो जितने भी गैप हैं उसमें, जिसमें एक बंदा था जो कुछ नहीं था आपके साथ, वो भी आपके साथ है. आप थोड़ा ऊपर चढ़े, वो भी बंदा आपके साथ हो गया. आप और ऊपर चढ़े, वो बंदा भी आपके साथ हो गया. आप और ऊपर चढ़े. दैट्स हाउ इट गोज. उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक ऑडियंस क्यूरेशन. जब लोग बात करते हैं ना यहाँ पे आके कि ऑर्गेनिक ऑडियंस बनाओ, ऑर्गेनिक ऑडियंस बनाओ, इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक ऑडियंस. बिकॉज ये ऑडियंस आपके साथ रहेगी नो मैटर वॉट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ही हैज हिज ब्रदर, his bhabi, his dad, his mom, and Kambhari himself. आप आगे जाके जब मैंने जो वीडियो बनाया है, it is a very sentimental video, but I've tried to keep it light-hearted. क्योंकि अगर आप कहानी सुनोगे ना इस बंदे की, and I didn't want to be the one to say it because same impact नहीं आता यार. As an artist मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि this was the journey, this is what he released, ये उसका impact था. लेकिन अगर इसकी इंटीमेट कहानी मैं बोल दूँ, it will not be the same. That is why I created what I created in terms of that video. But before we get to that video, let's go to certain hallmark moments of Kambhari's life. सबसे बड़े moments क्या थे? The rags to riches story जैसे मैंने बात की. Rags to riches मतलब he was from a very economically backward background. From there he is now sustaining his entire family. Financially, इतना बड़ा leap is not a small thing to ignore. The fight against drug abuse. As a teenager, बहुत लोग होते हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अल्कोहलिज्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं. एंड कामभारी वॉज नो एक्सेप्शन. कामभारी ऑल्सो वॉज इन्वॉल्व्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज बॉम्बे का आपको कल्चर पता है. बॉम्बे में इट इज़ वेरी ऑल टू कॉमन टू फाइंड टीनेजर्स जो बहुत यंग एज में ड्रग्स से एडिक्ट हो गए एंड ऑल ऑफ दैट. सो कामभारी फॉट दैट बैटल एज वेल, बट ही केम आउट ऑन द अदर साइड. He'll talk about that a little bit in the piece that I put together. But of course, towards the end, the greatest highlight of his career was the fact that he was featured in Gully Boy. And the feature of Ranveer Singh, which ultimately led him to signing with Ink Inc. And today, Kambhari is the forerunner, the head marker, if you will, the sole star of Ink Inc Records. So, एक पूरा record label एक इंसान के पीछे खड़ा है आज के दिन में. And that is why you know why someone is as authentic as Kambhari whenever he releases music. क्योंकि लोग उसको रोकने के लिए नहीं खड़े हैं. People are there to improve him, to help him, to increase his reach, and to support him no matter what he does. That has been Kambhari, man, in terms of his life, in terms of what he has brought to the table.
एरिया में मेरे को सब लोग आशु बुलाते हैं। आशु? तो हाँ, मतलब जो मेरे को एरिया से जानते हैं। हाँ। और जो स्कूल के थ्रू जानते हैं वो लोग कुणाल बुलाते हैं, क्योंकि घर पे मेरा नाम पहले आशीष रखा था, फिर स्कूल में जब डाले तो वो कुणाल कर दिया। Wow, आशीष, कुणाल एंड नाउ कामभारी। डेविल द राइमर, तू जितना भी चाहे ट्राई कर, तुझे पहना के छोड़ूंगा डाइपर। तेरी मत सटकी है, तेरी वाट पक्की है, तू खाट का खटमल, दिल्ली वाले तेरी जाट ठगी है। मैं मेरे दिमाग में बोलूं कि भाई इसको लाफे आने दे, पर ये तो मेहमान है बंबई का, दिल बोले दिल्ली वाले को जाने दे। मैं तेरे को ठेंगा दूंगा, तेरी दिल्ली में आके लहंगा दूंगा। काम भारी आया तेरे सामने, तेरी कमर कस ले यही। तू दिखता कंडक्टर जैसा, लेकिन हिप हॉप तेरे बस की नहीं। पेन छोड़ रे, काम भारी आया तोड़ने, तेरा पेन लेके खड्डा खोदू, तुझको गाड़ू उसमें मोड़ के। ये सब लोड ले मत, छोड़ दे अब रैप करना। मैं छक्के मारने आया हूँ और तू बस मेरे को देख के क्लैप करना। मैंने सोचा कि मेरा मतलब जो वाइब है तो वो मेरा नाम के साथ मैच करना चाहिए। जैसा मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ और मेरे रैप में काफ़ी मतलब फ्लेवर्स है बॉम्बे के। हाँ। बॉम्बे वाइब है, तो इसलिए मैंने सोचा कि काम भारी रखूँ, जो फेमस स्लैंग है मतलब बॉम्बे का। और काम भारी का दो मतलब है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। तो काम भारी मतलब गेम ओवर भी, और काम भारी मतलब वर्क हार्ड भी होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू टेक। जैसे मैं ग्रो हुआ लाइफ में तो मैं विदाउट एनी रूल्स ग्रो हुआ, पर अभी ये टाइम आ गया मैं अपने आप समझ गया कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है मेरे लिए और क्या बुरा है मेरे लिए। तो अभी मैं उतना मैच्योर्ड हो गया हूँ कि मैंने ही खुद का मतलब फ़र्क समझ लिया कि वो व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू। दिस इज वेयर यू ग्रू अप। यस यस। कब से हो इस घर में? मैं मतलब पैदा हुआ यहाँ पे। अच्छा, सब यहाँ से ही शुरू हुआ है? हाँ, तो मैं 20 साल का हूँ अभी। हाँ, तो so 20 years in this house. हाँ, वो बोलते हैं कि तू तो अभी स्टार बन गया है, ऐसा मतलब ऐसा बातें करते हैं, पर अभी तो मैं कुछ हुई नहीं, मतलब अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो जो भी है, जैसा जो भी एक मतलब यंग जैसे सोबत संगत या कुछ ड्रग अब्यूज़ या ऐसा कुछ, या ये मैंने एक बार मतलब एक अजीब चीज़ देखी तो उसकी वजह से मैंने क्विट कर दिया सब। तो मेरे दोस्त लोग ने एक को मतलब बहुत बुरी तरीके से मतलब मारा था। तो मैं सोचता था कि मैं खुद को में अच्छा रखता हूँ, पर मैं दूसरों को नहीं कंट्रोल कर सकता ऐसा। मैंने ट्राई किया वैसे सब कुछ ठीक करने का, पर मैंने देखा मैं तो ग्रो कर ही रहा था लाइफ में जैसा मतलब, पर मैंने वही देखा जब ऐसा मतलब अजीब चीज़, तो मेरे को वो सब देख के मतलब थोड़ा अजीब लगता है और कुछ नहीं। तो तब से मैं काफ़ी चेंज हुआ लाइफ। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को सब मतलब जो भी है कि अच्छे से लाइफ जियो, मतलब पढ़ाई करो वगैरह और चिल लाइफ जियो। मतलब बहुत सारे बच्चे लोग मैं देखता हूँ कि नशे में मतलब वो लोग अपना लाइफ ख़राब करते हैं। मतलब नशे से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उससे सिर्फ गुस्सा आता है। उनको लगता है कि 2 घंटे की शांति है, पर वो तुम्हारे बाकी के 22 घंटे ख़राब कर रहे हैं। 22 घंटे क्या, तुम्हारे पूरे 365 डेज़ ख़राब कर रहे हैं। यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस, यू कैन नॉट कंट्रोल योर एंगर। वही उनको मतलब मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अच्छे से रहो और पीयर प्रेशर में ना आओ। मेरी कॉम है हिप हॉप मेरा शौक नहीं, और तू भी लिखते रहे बहुत सही। आरज़ू रख, कठोर बार्ज रख, साथ में वजन रख, तू हल्का पर भार रख, बात में काम कर, भारी काम से खात्मे कर। पर ऐसा ना कर मेरे दोस्त, ना जात पे लड़, हाथ से कर पर भगवान की बात से डर। मात से लड़ और चट्टान को शान से चढ़, बांध से धड़ को अलग तू कर दे, पर तीर रख प्यार का और अमन को सर दे। ये मकसद तेरा तुझ में भर ले और कर इतनी मेहनत के खुद का घर ले। माँ बाप को सुख दे ना दुख दे, और दुख दे जो उनको वो इधर ही भुगते, और टीचर्स को भी सुख दे, समझा, काटे चुपते। जस्टिन का एक गाना है बेबी, वो मैंने देखा था, तो उसमें लुडाक्रस रैप करता है। हाँ। When I was 13, I had my first love, there was nobody to compare me, तो तब मैंने रैप डिस्कवर किया था। वैसे घर पे ज़्यादा टाइम जहाँ पे लिखा हूँ तो घर पे किचन में, क्योंकि रूम नहीं है मेरे लिए स्पेशल, तो किचन बनता था मेरा रूम। अच्छा, खुद का रूम नहीं है। हाँ। तो वही मैं वैसा बैठ के मतलब लिखता था किचन में, क्योंकि किचन शांत जगह था। अभी भी लिखता हूँ, और वैसे तो कहीं पे भी लिख सकता हूँ ऐसा, तो लिखते रहता हूँ चीज़ों को। मतलब कभी कभी अच्छा थॉट आता है तो पेन डाउन कर देता हूँ, कोई इंस्पायरिंग थॉट आता है। पेन एंड पेपर की मोबाइल फोन?
मोबाइल फ़ोन ज़्यादा मतलब हेल्प करता है क्योंकि अभी घूम रहे इधर उधर तो मतलब हमेशा बुक कैरी करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। पेन एंड पेपर स्कूल टाइम्स में या आई राइट लव सॉन्ग। आई हैव सो मच लव टू गिव टू द वर्ल्ड। बिस्तर पे पड़ा या विचार में पड़ा मैं, पड़े खत सारे तेरे बुरे हाल में पड़ा मैं, परित्याग किया घर को ये विश्व के रिश्ते बन, किसके पास जाऊं मैं हार के गिरा मैं, द्वार खुले मेरे लिए सारे, अंधेरा दिखा मुझे, लोग बात करे तो करे सवेरा दिखा मुझे, तिजोरी तोड़ी मैंने भूल गया आब्र को, चोरी करी मैंने बोला खुद से के जाग रुको, वो भी क्या नशा था, नशा भी क्या था पता ना, लत लगी तलब की छत भूला मैं खटाना, ना चाहता बताना पर बताना पड़ेगा, जिंदगी है एक तमाशा इसे घटाना पड़ेगा, दोस्त झूठ सुने मुझे सच ना पता है, और हंस के टालू बला को जच ना पता, खुशी गम सुखी कम थे हम, सुखी हर बात जब चली जबान नम थे हम, सम थे कम हम, जज्बाती थोड़ा हो गया मैं, खो गया मैं, होश आया सो गया मैं, विश दिया तूने पी गया मैं, दुनिया हरी सारी जब जी गया मैं। Here's current affairs. बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, पर बेटे को देखेगा कौन अब जाओ, बेटे को सिखाओ बेटे को सिखाओ, बेटे के दिमाग से टट्टी हटाओ, नारी की इज्जत तुम करना सिखाओ, बेटे को ऐसे ना सर पे चढ़ाओ, ऐसे कैसे होने लगे अपराध, अपने बेटों की ठरक को रोको जनाब, पेड़ काटो मेरा खून पियो मता बोले धरती के मर्जी के हो तुम खिलाफ, खेत काटा या बीज बोया तूने तेरे नाश्ते का खाना जब होगा फिर खारिज, समझेगा तब संभलेगा जग जब बनेगा तू अपनी ही मर्जी का मरीज, दम घुटे मेरा अब जग से, मैंने रस्तों के गक्कड़ से बिल्डिंग बनाई है, संभलूंगा किसी ग्लोबल की वार्मिंग से, लोकल के धक्के और फोकट की चाय से, मुझे आई है जोर से चिल्लाने को, चल चल छोटे सुन, तेरे को बोनस मिलेगा, इंडिया से तेरे को एक पोटस मिलेगा, रास्ता मिलेगा या खड्डा मिलेगा, पर जो भी मिलेगा वो बोगस मिलेगा, तू फोकस में रहना, चुप बैठ के सहना, ठोकर खाकर रोकर बेचेगा गहना, नोट होगे बंद वोट होगे गायब, नेता लोग बोले मुझे वो है खलनायक, तो शायद से नायक मैं नायक नहीं गायक, मैं गायक नहीं करता मैं रैप, करता कम फैक्ट्स बोलता मैं फैक्ट्स, जेवण नाही पोटाला मशीन में घोटाला, शॉट नको देऊ रे माझ्या तू डोक्याला, जैसा दिखता वैसा कुछ भी नहीं होता है, भाई तेरा पोछता नहीं सीधा धोता है, तू खोटा है, इधर उधर घूमे जैसे लोटा है, मैं तेरा परदादा तू मेरा पोता है, व्हाट्सएप में जीता बोल 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 बोल, व्हाट्सएप में जीता फैशन कविता, जश्न में पीता पलंग पे चीता, दर्शन में चलता संभलता गिरता, इसलिए बोले लोग व्हाइट कॉलर, तो गौर करो जज्बात बोले मेरे शोर करो, जाम भरो काम करो, राम नाम पढ़ो खाना खाओ, आराम करो दम मारो, गम में भी बीत गए लम्हे भी दिन लगा ढलने को, कल्ले को नया वाला बल रखो खुद का तो पल्ले को नया वाला, जलने तो जलते जो बोलो उन्हें जल के लो, स्मोकिंग स्किल्स में देता इन्हें कर करो, को छोड़ो ध्यान दो करम पे, गाते लाना फ्लो ये फटते बम से, कर खत्म नरम ये बात मन से, बस कलम से सिर कदम ये कर ले, सांस ले ले दर्द है हवा सा, सोया तू ये गीत है जगाता, शाम दाम दंड भेद कर तू, खंड खंड हूँ मैं करते जाता, गणपती आला रे पाऊस पण आला रे, सुखाचा श्वास मनाला रे आला रे, मळकटी बुद्धी घेऊन तो जाणार रे, कळकटी मनाला शुद्धी तो देणार, भीती मनुष्याची कीर्ती देवाची हा घेऊन जातो तो, भीती मनाची हा नाचू लागल हे जग सारं बघा, हवेत गुलाल माथ्यावर टिळक, हितामध्ये आमच्या देवा तू येशील का, सैनिकांना आमच्या सुरक्षा देशील का, हितामध्ये आमच्या देवा तू येशील का, सैनिकांना आमच्या सुरक्षा देशील का, आला रे गणपती आला रे, नापीक जमिनीला आनंद झाला रे, आला रे गणपती आला रे, नापीक जमिनीला आनंद झाला रे, आला रे गणपती आला रे, नापीक जमिनीला आनंद झाला रे, आला रे गणपती आला रे, नापीक जमिनीला आनंद झाला रे, ये विश्व का अब जिंदा कल मर जा, सर चढ़ जाएगा जब तब घर जा, तू लड़ जा या मर जा, डसने वाले लाख नाग कुछ तो अपने साथ साथ है, रात रात